Hello, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel, Prayagraj English Language Academy. Once again, Good welcome to evening, all sir. of you. Yes, good evening, Jaya. How are you, Jaya? What is going on? All, all are fine. That's very good. That's really very good. Okay, so we are waiting for some other people also to join. So 3-4 people are just getting join. After that, we will start it out. Good evening, sir. Good evening, Sandeep ji. How are you? What is going on? Yes, good, sir. So have you done the recap session, whatever we have done in the previous lecture? Pardon, sir. Have you done the recap? Have you repeated whatever we have done in the previous session? No, sir. Because I have a lot of work in the office. Okay. So because 31st March now, that's why I have some work. But I will go. Saturday Sunday I will go to. Yes, no problem. So do one thing, Sandeep, whatever I'm teaching, so make sure at least you're just going through, not on daily basis if it is not possible for you to go on daily basis. So at least, alternate basis you can join because this is very important, okay? Because now we have made a plan to make you all able to speak English. That is what is my responsibility. So I would like to tell you to go through every day, whatever I have taught you. Still, if you are having any confusion or any kind of a problem, you can get in touch with me. Okay. I have some because I want to concern before I want to some my concern. Yeah. What is the For my concern? education. So I want to talk about the education. I wanted to discuss afterward. I want to take your time tomorrow. So Yes, definitely. tomorrow we are. Sandeep, no problem. What we have decided tomorrow, we are going to have a discussion with regards of the educations, how we can take our, our career further in our life. That we are going to do the discussion. Don't worry. With all the people, we are going to do it. Okay. Yes, you can do. Okay, guys. So without wasting much of our time, we are going to, we are going to start with the lecture whatever we have, done yesterday. So I'm just going to share my screen whatever I have made, and now you can understand. So I would like to tell you that whatever we have done in the past, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है? 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं गाइस. पहला, दूसरा, तीसरा 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. तो पहले में हम लोगों ने ट्राई किया था कि we try to understand how we could give our how could just two people are waiting. So फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें. कहीं पे भी जाते हैं for if you are visiting any place for the interview, we are visiting as a as a anything, as a employer, as a student, as a parents, wherever we are going. So at that time हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. तो हम किस तरीके से इंट्रोडक्शन दे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने आपको डिसाइड किया था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द टेंस. मींस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस. करेक्ट. कुछ लोगों को लगता है कि टाइम एंड टेंस दोनों एक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. टाइम अलग है और टेंस अलग होता है, वो आप लोग को पता है. तो वो हम लोगों ने बात किया था. फिर गाइस जो लोग म्यूट नहीं हो, प्लीज आप लोग म्यूट पे जा सकते हो बिकॉज आई एम गेटिंग सम वॉइस फ्रॉम योर साइड. ओके, हु इज देयर? आई थिंक आशीष. तो मुझे अनम्यूट करना पड़ रहा है. आशीष सॉरी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया बिकॉज आई वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड. ओके गाइस, कम ऑन, लेट्स गो. दूसरे लेक्चर में हम लोग ने टाइम एंड टेंस देखने का प्रयास किया था कि व्हाट इज द टाइम एंड व्हाट इज द टेंस. मींस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम एंड टेंस. वो हमने प्रीवियस वीडियोस में दिया था. वीडियोस YouTube पे जाकर देखेंगे तो वहां पे डिटेल्स आपको मिलेगा. कल के लेक्चर में, कल मतलब 7th को हम लोगों ने किया था, 7 अप्रैल को, मतलब तीसरे लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि दो तरीके का टाइम होता है. एक आपका फिक्स्ड टाइम होता है, एक अनफिक्स्ड टाइम होता है. तो जो फिक्स्ड टाइम होता है उसकी जो हिंदी होती है, वो हिंदी तो आपको दिखती है फ्यूचर में, लेकिन उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की जाती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन की जाती है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन किया जाता है. कल हम लोगों ने देखा था कि पीएम
प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो हम लोगों ने वहां पे ये नहीं लिखा था कि पीएम विल गो टू अमेरिका, नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, हम लोगों ने लिखा था पीएम गोज टू अमेरिका, क्योंकि वो फिक्स्ड है। मैंने आपको बताया था। अनफिक्स्ड इसी तरीके से बताया था, जो पर्सनल होता है, खुद का होता है, खुद का डिसीजन होता है, कहीं पे अनाउंस नहीं, वो पर्सनल होता है। उसके लिए उसकी हिंदी भी फ्यूचर होती है और इंग्लिश भी फ्यूचर होती है। मैं फिर यहाँ पे आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि हिंदी के हिसाब से आपकी इंग्लिश नहीं है। एक छोटे से नोट्स के साथ मैं चालू करूंगा आज का लेक्चर। जैसे कि आपको अगर बंगाली सीखना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आता रहे तभी आप बंगाली सीख सकते हैं। आपको संस्कृत लैंग्वेज सीखनी है तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी आता रहे। उसी तरीके से इंग्लिश सीखना है, हिंदी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी हैं, अच्छे नेटिव स्पीकर हैं, तो हम लोग हिंदी का ज्यादा सहारा लेते हैं। बट माफ कीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑड लगे, बट ऐसा ही कुछ होता है कि हिंदी की कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। आगे जब हम लोग कॉन्वर्सेशन में जाएंगे तो एवरीथिंग वी वुड बी डूइंग इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, बिकॉज इंग्लिश इज बेसिकली डिपेंड ऑन द सेंस, करेक्ट सेंस पे होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द टेंस। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये सिर्फ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर योर पीपल। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। हम लोगों ने कल एक और चीज कवर किया था कि टेंसेस जो होते हैं, हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग कुछ लोग पहले 4 प्रेजेंट पढ़ लेते हैं, 4 पास्ट पढ़, सॉरी, हाँ, 4 प्रेजेंट पढ़ते हैं, फिर 4 पास्ट पढ़ते हैं, फिर 4 फ्यूचर पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लोग पहले 3 इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं, फिर 3 कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, फिर 3 परफेक्ट पढ़ते हैं, फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। हालांकि दोनों मेथड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल के लेक्चर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है डे 4 का जो है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि टेंस का, अभी याद रखना, मैं आपको कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकल चीजों से परिचय करा रहा हूँ कि जो आपके लिए इंग्लिश इतनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे तो इंग्लिश नहीं आता सर, मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ, सीखना चाहता हूँ। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इंग्लिश इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड, बट समझो, पहले बेस समझो, व्हाट इज द बेसिक, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट आप खुद की मैच्योरिटी रख के इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। मैंने बताया कि टेंसेस का नामकरण कैसे हुआ, मींस हाउ नेमिंग सेरेमनी इज डन फॉर द टेंसेस। कैसे टेंस को बना दिया गया यार कि ये इंडेफिनिट है और ये कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कैसे बना दिया गया, ये जानना बहुत जरूरी है। फाइनल ट्रांसलेशन सीखने से पहले वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टेंस, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये आया, या इसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स है। लोग इसको इंडेफिनिट को इंडेफिनिट ही कहते हैं, क्यों परफेक्ट को परफेक्ट ही क्यों कहते हैं, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्या दूसरा नाम नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उसका एक रीजन है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है समझने का प्रयास करना, बहुत डिटेल्स में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मे बी आपको शायद कहीं नहीं बताया गया होगा, या हो सकता है परिचित भी होंगे, बट मुझे पता है आज जो मैं आपको बताऊंगा ये आपके नॉलेज से, आज जो मैं सीखेंगे आप, ये आप पिछले लेक्चर्स में कहीं नहीं सीखे होंगे, वो मुझे पूरी तरह से बिलीव है, विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट। आपने कुछ देखा होगा, एक होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, वर्सेस मतलब बनाम होता है। बनाम कभी आपने देखा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, वर्सेस मतलब बीच में, मतलब बनाम वर्सेस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, और सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, और सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये हम समझने का प्रयास करेंगे इसी में। देखिए, पहले तो आप सिंपल को मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत रॉन्ग मिथ है हमारे ग्रामर में, जो हमारे ग्रामरियन है या हमारे जो बुक लिखी गई है, वहां पे सिंपल को और इंडेफिनिट को एक में ही डाल के पढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंपल होता है, जैसे हमने बोला कि मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं ट्रेनर हूँ, आई एम अ ट्रेनर।
तो जो मैंने बोला कि मैं ट्रेनर हूं, तो जो सिंपल होता है यहाँ पे नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। नाउन मतलब नाम, नाम होता है। जैसे कि कोई भी नाम आप जानते हो, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी होता है, नेमिंग वर्ड होता है। तो जो सिंपल होता है, जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर होता है, देयर वी आर गेटिंग ओनली नाउन। हम लोग नाउन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन, देयर इज नो वर्ब। आपको पहले भी पता होगा कि टेंसेस वर्ब के हिसाब से चलते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में वर्ब नहीं होता है। क्या होता है? वर्ब नहीं होता। तो होता क्या है सर? वर्ब नहीं होता, नाउन होता है सर, नाउन होता है। ठीक है। तो जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर है, देयर वी आर गेटिंग नाउन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। इन शॉर्ट इंडेफिनिट में हमें क्या मिलता है? वर्ब मिलता है। क्या मिलता है? वर्ब। सर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बट टीचर का कोई फॉर्म नहीं है। आप टीचर, टीचर्ड, टीचर, टीचरिंग ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो जो नाउन होता है ना, वो सिंपल में कंसीडर किया गया है, और जो इंडेफिनिट है ना, उसको किस में कंसीडर किया गया है? वर्ब के साथ कंसीडर किया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सिंपल और इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। सिंपल और इंडेफिनिट में इतना ही डिफरेंस है कि सिंपल में नाउन आता है। फिर दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि वह एक लड़की है, तो मैं बोलूंगा सी इज द गर्ल भी बोल सकता हूँ, दैट इज गर्ल भी बोल सकता हूँ। अगर मैंने दिखाया कि दैट इज गर्ल, मैंने अगर दूर की ओर इशारा किया तो मैं दैट लगा दूंगा, और अगर मैंने नजदीक की ओर इशारा किया तो मैं दिस लगा दूंगा। तो मैं बोला कि दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैंने बोला कि वह जाती है, तो मैंने बोला शी गोज, तो ये इनडेफिनिट का है, प्रेजेंट का इनडेफिनिट है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट और इनडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। फिर से मैं याद आपको दिलाऊंगा लाइनिंग। सिंपल जो होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नाउन आते हैं, संज्ञा आती है, संज्ञा आती है, और सर्वनाम भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, तो आई विल टेल यू आउट। बट यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो कि नाउन मतलब नाउन और वर्ब का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोगों ने सिंपल और इनडेफिनिट कहने का प्रयास किया है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी कि अच्छा ऐसा होता है। मैंने आपको लिखा है हमारे व्याकरण में दोनों जो हमारे बुक्स हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, इंडेफिनिट और सिंपल को एक में ही रख दिया है। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि ऐसा कैसा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई ग्रामेरियन मेरी वीडियोस को देखता होगा या लेक्चर में कहीं बैठा रहेगा, तो प्लीज आप ट्राई करो कि जो नेक्स्ट पब्लिकेशन करो वहां पे आप चेंज कर दो। और अगर नहीं चेंज करते हो तो वहां पे प्रिसाइज्ड वे में लिखने का प्रयास करो, ग्रामर में नोट बकायदे डाल के कि सिंपल को सिंपल इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज अ नाउन, indefinite we are using the verb, that is what the difference is, so that people can understand, student can understand, they should not get confused, my god यार ऐसा कैसा हो गया। मेरा खुद का बहुत कंफ्यूजन था जब मैं एमबीए करना चालू किया, तो मुझे पता चला था। आई एम रियली वेरी सॉरी टू टेल यू, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इंग्लिश लिटरेचर से, मुझे नहीं पता था ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। विच इज रॉन्ग बिकॉज स्टूडेंट कैन कंफ्यूज, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ऊपर कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको अलग करो। अच्छा, सिंपल टेंस में हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं एंड इंडेफिनिट में हम केवल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये भी मैंने आपको प्रीवियस में बता ही दिया है। कुछ एग्जांपल के साथ देखने का प्रयास करते हैं माय डियर ऑल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया हूँ कि वर्ब क्या होता है और वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है। मैंने लिखा मैं एक लड़का हूं, तो ट्रांसलेशन लिखा कि आई एम अ बॉय। तो यहाँ हियर बॉय इज अ नाउन, यहाँ पे जो बॉय है ना, ये जो बॉय है, जो मार्क मैंने किया, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। दूसरा मैंने लिखा है कि मैं खाता हूं, तो मैंने लिखा आई ईट। ये जो ईट है ना, ईट का फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, तो ये क्या है? आपका वर्ब है। हियर ईट इज वर्ब, यही दोनों का डिफरेंस है। आप तीसरा एग्जांपल देखो, आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक नाउन है माय डियर ऑल, स्टूडेंट नाउन है। हियर स्टूडेंट इज अ नाउन, यहाँ पे नाउन है। ये सिंपल टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन आप मोबाइल बेचते हैं, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट है इन द सेंस ऑफ
यहाँ पे वर्ब आ रही है, ये जो ब्लैक जो मैंने रेड में लिखा है ये वर्ब है। हियर सेल इज वर्ब, यहाँ पे सेल वर्ब है। आगे मैं एक लड़का था, आई वॉज अ बॉय, यहाँ पे लड़का फिर से नाउन हो गया है, इसीलिए सिंपल पास्ट हो गया है। मैं खाता था, एट हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई। पहली यहाँ पे हम लोगों ने ईट लिखा था फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म लगाया है, एट हो गया। हालांकि आप कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो, आगे टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा कवर करेंगे, इसकी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आप टेंशन मत लो। अभी सिर्फ मैं आपको एक परिचय करा रहा हूँ, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखने का काफी प्रयास किया है कि अगर आप मोबाइल बेचते थे तो ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पे सॉरी ये जो सोल्ड है ये आपका पास्ट में इंडिकेट कर रहा है। हियर सोल्ड इज वर्ब, मैंने गलत मार्किंग कर दिया है ब्लू से इसको, मोबाइल्स को, यहाँ पे सोल्ड में होना चाहिए था, ठीक है। सोल्ड आपका यहाँ पे वर्ब है। अच्छा, वह डॉक्टर हो गई, शी विल बी अ डॉक्टर, तो डॉक्टर आपका नाउन है, डॉक्टर आपका नाउन है, इसीलिए इसको सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरीज में डाल दिया गया है। वह हॉकी खेलेगी, मतलब शी विल प्ले हॉकी, यहाँ पे प्ले आपका वर्ब है, क्योंकि आपको प्ले की 4 फॉर्म्स होती हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। तो यहाँ पे प्ले जो है एक वर्ब है, इसीलिए हम लोग इसको फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से डालते हैं। फिर से इंडेफिनिट सिंपल में क्या डिफरेंस है? सिंपल में सर नाउन होता है, इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन सर कहीं कहीं पे सिंपल और इंडेफिनिट एक में ही पढ़ा जाता है, तो आप मुझसे झगड़िएगा मत या उनसे भी मत झगड़िएगा, सिर्फ डिफरेंस जानने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा बहुत जबरदस्त आपका क्वेश्चन आपके सामने आज लाया हूं कि अच्छा लगा मुझे भी जब मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग काफी दिनों के बाद हुई, काफी कुछ पढ़ने के बाद, बहुत ग्रामरियन के पढ़ने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि मैंने एमबीए, मास्टर, ब्लैक बेल्ट, ऑल दिस कंप्लीट करने के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई थी कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट ही क्यों कहा जाता है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट ही क्यों कहते हैं सर? क्या इंडेफिनिट है इसमें? अनिश्चितता क्या है? इंडेफिनिट मतलब आप बोलते हैं ना डेफिनिट, डेफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। क्या अनिश्चित है इसमें सर? क्या अनिश्चित है कि इसको इंडेफिनिट कहा जाता है? आइए सीखते हैं आगे के टाइम पे। रीजन क्या है? इट हैज टू लॉजिक्स माय डियर। जो तो ग्रामर याद रखना, लैंग्वेज कोई जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, कोई एक आदमी ने नहीं बताया। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर जी इंग्लिश के पिताजी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश को कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने। जब आपको कभी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश, हाउ इंग्लिश इज ओरिजिनेटेड, इंग्लिश पैदा कैसी हुई 14वीं और 15वीं शताब्दी में, तब जब कभी मैं आपको लेक्चर लूंगा ना तो एक उस पर बताऊंगा इंग्लिश आई कैसे, ऐसे कैसे आ गई, हमें इतना परेशान क्यों करती है। तो आपको मजा आएगा कि अच्छा यार इंग्लिश इसलिए है, कोई एक आदमी नहीं लिखा है कि इंग्लिश मैंने लिख दिया है तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज है, नहीं, बहुत सारे राइटर्स ने इसको लिखा है। तो लैंग्वेज हर जगह वेरीज हो सकती है, इसीलिए आप जितनी किताबें पढ़ोगे आपको अलग 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 आपको लॉजिक्स दिखेंगे। तो ये आपका काम है पढ़ना, आप जितना पढ़ो, क्योंकि आप सीखने वाले स्टूडेंट हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं प्रमोट करूंगा कि आप पढ़िए, किताबें खरीद के पढ़िए, सिर्फ हमसे ही मत पढ़िए, किताबों को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किताबें अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं, मेरे से भी ज्यादा एजुकेटेड लोग। आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 2 लॉजिक लिखा, इट हैज 2 लॉजिक्स गिवन बाय ग्रामरियन एंड स्टैंडर्ड राइटर्स। जो बढ़िया बढ़िया राइटर्स हैं ना, बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो लोगों ने 2 लॉजिक दिया है कि इसको इंडेफिनिट क्यों बोलता है। पहले लॉजिक में पता चलता है यार कि यहाँ समय नहीं बताता है, मतलब ये समय जो इंडेफिनिट है इसमें समय बताता ही नहीं है, ये कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। दूसरे लोग ने क्या बोला है कि ये सारे टाइम में चला जाता है सर, मतलब इसको इंडेफिनिट क्यों बोल दिया कि ये प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में होता है। याद रखा, दोनों अपोजिट हैं। पहले के जो 2 ग्रुप में बटे, मतलब जो ग्रामर के लिखने वाले हैं उनका 2 ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप गया। एक ग्रुप ने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं हिंदी में कि मैं जाता हूं, इससे पता नहीं चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग ये साइड में चले गए कि इससे सभी टेंस का पता चलता है, इसके लिए हम इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। डेफिनिट तो तब होता है ना जब किसी एक टेंस में होता, मतलब प्रेजेंट में ही होता, तब डेफिनिट होता। अगर ये सभी टेंस में जा रहा है तो फिर तो ये इंडेफिनिट हो गया, अनिश्चित हो गया। अच्छा, दोनों लोग का क्यों ऐसा लॉजिक है, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर मजा आएगा। मैंने यहाँ लिखा है, काफी डिटेल्स मैंने लिखा है,
काफी पढ़ने के बाद मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको मजा आए मेरे साथ पढ़ने में और मुझे भी मजा आए कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ दूसरे से अलग। ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको 40 मिनट में पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा, आप दूसरे वीडियोस देख सकते हो। इंग्लिश पढ़ने का मजा तब आएगा जब हमारे साथ आप लॉन्गर टाइम तक पढ़ोगे, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, ये और जरूरी नहीं है कि आप तुरंत समझ जाओ, क्योंकि ये मेरे कई सालों के एनालिसिस हैं, आपको टाइम लगेगा सीखने में। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आप तुरंत सीख जाओ। आगे बढ़ते हैं। हम पृथ्वी पे रहते हैं, आपको पता है कि हिंदी वाले बोलते हैं कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यहाँ पे ते है आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हम लोग देखने का प्रयास करें सर इंडेफिनिट ही इसको क्यों बोलते हैं। देखो, वी लिव ऑन अर्थ, इसका ट्रांसलेशन होता है हम पृथ्वी पे रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन होता है वी लिव ऑन अर्थ। हम पृथ्वी पे रहते हैं। आई नो, आई नो, आई नो टेंस टेंस इज इन प्रेजेंट एंड बट टाइम इज नॉट श्योर। टेंस आपका प्रेजेंट में है लेकिन इसका टाइम नहीं पता चल रहा है। आज आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत लॉजिक बता रहा हूं। आज आप पृथ्वी पे रह रहे हैं, मतलब हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो ये मुझे बताओ भाई, कल आप कहाँ रहते थे? कल आप आसमान पे रहते थे क्या? पाताल में चले गए थे, या किसी मरकरी पे चले गए थे, या प्लूटो पे चले गए थे? सर मार्स पे चला गया था मैं, मार्स पे से यहाँ पे आया हूँ, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम पृथ्वी पे रहते हैं, आज आज पृथ्वी पे रहते हो, कल भी पृथ्वी पे ही रहते थे सर, और आने वाले सालों तक भी आप पृथ्वी पे रहोगे। हाँ, बड़े स्केल पे चेंज हो सकता है कि चाइना वाले जैसे कर रहे हैं कि भाई हम लोग वहां पे मार्स पे या फिर चंद्रमा पे, मून पे बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, कुछ सालों में वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। बट ये बहुत स्केल पे चेंज होगा आने वाले समय में, नहीं 2 4 10 20 25 50 नहीं, इसको शताब्दी लगेंगे भाई, सेंचुरीज लगेंगे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पृथ्वी पे रहते हैं। अभी के टाइम पे तो प्रेजेंट आपका टेंस प्रेजेंट में दिख रहा है, लेकिन इनडेफिनिट है। कल भी आप पृथ्वी पे ही रहते थे सर, कल मतलब बीते हुए कल में, कल भी आप रहते थे, आज भी रहते हो, और कल भी पृथ्वी पे ही रहोगे। पानी में रहना नहीं चालू कर दोगे कि मछली बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए इनडेफिनिट है। पहले वाले जो राइटर्स हैं वो लोगों ने बोला भाई कि ये तीनों टेंस में जाता है, मतलब इसका जो समय होता है, जो सेंस होता है, वो तीनों जगह जाता है। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ठीक ठाक हिंदी और इंग्लिश के साथ समझाने का आपको प्रयास किया है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पृथ्वी पर रहते हैं, कल कहाँ रहते थे? यू डिडंट केम फ्रॉम मार्स एंड प्लूटो, यस्टरडे आल्सो यू वर लिविंग द सेम, यू नो, ऑन द सेम काइंड्स ऑफ द सिचुएशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। आशीष, हेलो, यस सॉरी आशीष, सर। बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आशीष यार। सर, यहाँ जो सेंटेंस है, वी लाइव लाइव वी लिव, लाइव वी ऑन लिव 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 पृथ्वी के लिव। बाद में आई नो टेंस हाँ, नहीं इन नहीं नहीं इन है नहीं, ना सर? हाँ ये गलत है, हाँ, लिव, लिव। हाँ आई जो नो, ये यहाँ इज पर इज इज इज, यहाँ पे आई इज। आई नो टेंस, हम्म, हाँ, वहाँ पर क्या आई, है? ईज है वो। यस इज है, टाइपो एरर है, मैं सुधार के आपको बताऊंगा। मैंने पहले दिन ही लेक्चर बताया था कि प्लीज अवॉइड माय टाइपो एरर। मैं 10 घंटा काम करने के बाद पीपीटी आपको बना नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं, वो आप ठीक है सर, मुझे मतलब डाउट था, इसके लिए मैं नहीं, पूछ लिया परफेक्टली सर। परफेक्टली, नो प्रॉब्लम, आप डाउट रेज कर सकते हैं। जब मैं आपको पीपीटी भेजता हूं तो वहां पे चेंजेस करके भेजता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आशीष फॉर योर क्वेरीज, थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कल भी पृथ्वी पर रहते थे, आज भी रह रहे हैं, और आशा करता हूं कि पूरा जीवन पृथ्वी पे रहोगे। इसके लिए टेंस क्या है? अनिश्चित है, इनडेफिनिट इसको कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मैं रोज सुबह 10 बजे उठता हूं। आप तो बोलोगे सर ये निश्चित समय है, 10 बजे की बात कर रहा है कि 10 बजे उठता, लेकिन ये देखो, आई वेकअप एट डेली, मतलब आई वेकअप डेली एट 10 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 10 बजे उठता हूं। अगर आपके मन में यह सवाल है कि सर समय दिया है तो यह डेफिनेट है, योर आंसर इज डेफिनेट। आपका आंसर जो है, जो उत्तर है, वो डेफिनेट है। यू आर रीडिंग ग्रामर, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, एंड यू हैव टू शो टाइम, आपको समय दिखाना है, जो कि आपका डेफिनेट, एज अ डेफिनेट समय आपको डेफिनेट दिखाना है। बट हियर टाइम डज नॉट मीन 7 o'clock 8 o'clock, वी हैव टू सी द टाइम ऑफ सेंटेंस, हमें सेंटेंस का टाइम दिखना है कि मैं रोज सुबह 10 बजे उठता हूं। जाहिर सी बात है,
आपने बोला कि मैं रोज 10 बजे उठता हूं, तो रोज से क्या पता चला कि भाई कल भी आप 10 बजे उठते थे, आज भी उठते हो, कल भी उठोगे। तो ये टाइम जा रहा है, मतलब पास्ट में भी बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है, फ्यूचर में बता रहा है। ये जो 10 बजे उठते हो वो आज का समय बता रहा है, लेकिन इसमें अनिश्चितता इस बात की है कि भाई आज नहीं, मैं रोज उठता हूं, मतलब कल भी उठता था, आज भी उठता हूं और कल भी उठूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना है कि इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है। कुछ एक एग्जांपल देखते हो, यू केम एट माय होम एंड यू आर वॉकिंग अप एट 10 AM, सो कैन वी जस्ट दैट यू आर वेकिंग अप एवरी एट डिनर। मान लो आप 10 बजे आप हमारे घर पे आए एज अ रिलेटिव्स, मैं एज अ कोई मेरा रिलेटिव मेरे घर पे आया और सुबह 10 बजे उठा हो, रात के कितने बजे उठा, सुबह 10 बजे उठा, तो मैं क्या उसको बोल सकता हूँ क्या कि आप 10 बजे उठते हैं? आप 10 बजे उठते हैं मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता है भाई कि वो कल कितने बजे उठता था। हो सकता है कल वो 5 बजे ही उठता होगा, उसका जॉब का टाइमिंग रहता होगा जल्दी, सुबह वो 5 बजे उठता होगा। और इसमें क्या पता है, इसमें ये भी अनिश्चितता है, इसमें ये भी अनिश्चितता है कि वो कल भी उठेगा। मतलब कल भी क्या जरूरी है क्या कि वो कल भी 10 बजे उठेगा? नहीं। वो रिलेटिव्स के यहाँ पे आया है 10 बजे उठा, तो आप जज नहीं कर सकते, किसी एक सेंटेंस से जज नहीं कर सकते कि वो कल क्या कर रहा था और फ्यूचर में क्या करेगा, नहीं जज कर सकते माय डियर फ्रेंड। इसीलिए अनिश्चित क्लास क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग जो है वो तीनों में जा रहा है। आप 10 बजे उठते हैं, मैंने आज आपको देखा, सर कल मैंने नहीं देखा, कल आप 5 बजे उठते होगे, आपका टाइमिंग 5 बजे का होगा। परसों आप 5 बजे उठोगे, आपका टाइमिंग चेंज रहेगा सर। हो सकता है एक ही दिन आप ऐसे उठो, इसीलिए अनिश्चितता पाया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तुम देर आते हो, हियर इज द केस दैट स्टूडेंट इज न्यू। मान लो मैंने आपको बताया आप हमारे स्टूडेंट हो, मैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज आपका पहला दिन है, याद रखना आज आपका पहला दिन है। 8 बजे से आपका लेक्चर चलना चाहिए था, लेकिन आप कितने बजे आ रहे हो? 9 बजे आ रहे हो। तो क्या मैं आपको बोल सकता हूँ क्या कि आप लेट आते हो? आप लेट आते हो मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आज वो लेट आया है, आज लेट आया है, हो सकता है कल से वो फिर से टाइम पे आना चालू कर दे। तो ये टाइम यहाँ पे इंडेफिनिट है, मतलब आज के हिसाब से आप जज नहीं कर सकते हो। इसी में दूसरा एग्जांपल ले लेते हो, पहली बार तो वो आया तो लेट हो गया, 8 से आना चाहिए था, 9 पे आया, तो आपने बोला, आप नहीं बोल सकते कि आप लेट आते हो। एक हफ्ता वो लेक्चर अटेंड किया, एक हफ्ता वो लेक्चर अटेंड किया और फिर आप बोलते हो कि तुम रोज लेट आते हो। एक हफ्ता से मैंने जज किया, एक हफ्ते से जज किया कि लेट लेट लेट, डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे फिफ्थ, ऐसा 6 डेज तक वो लेट ही आया है। तो क्या मैं जज कर सकता हूँ क्या कि आने वाले समय में भी वो लेट आएगा? नहीं जज कर सकता। इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनडेफिनिट बोला जाता है। आगे एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन, वी ऑल आर इंडियन। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ। तो आज मैं भारतीय हूँ, कल मैं पाकिस्तानी नहीं था, कल भी मैं इंडियन ही था, आने वाले समय में भी मैं इंडियन ही रहूंगा। मैं अक्षय कुमार नहीं बन जाऊंगा कि मैं जाके कनाडा की सिटीजनशिप ले लूंगा। फिर वो बहुत रेयर केसेस में होता है, मैंने बताया बहुत रेयर केसेस में होता है। 99% आप जो आज हो वही कल थे और आने वाले समय भी रहोगे। मान लो मैं फिर से आपको बोला कि मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं कल सब्जी बेचना चालू कर दूंगा, या फिर मैं कल डांस करना चालू कर दूंगा, या फिर मैं कल किसी गैराज में काम करना चालू कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज ट्रेनर हूं, कल भी ट्रेनर रहूंगा, कल भी ट्रेनर ही था। तो अनिश्चितता बरकरार होती है माय डियर। टेंस में जो होता है, इनडेफिनिट के टेंस में अनिश्चितता होती है, इन अनसर्टेनिटी होती है, इसीलिए इसको इस तरीके से बोला जाता है। यहाँ पे देखो रवि पढ़ता है, अनिश्चितता है, यहाँ पे भी रवि पढ़ता है। क्या पता भाई, मुझे नहीं पता, रवि पढ़ता है। हो सकता मैं आपको बोला कि आपने मुझे बोला सर मैं पढ़ता हूँ, मैंने देखा क्या कि आप पढ़ते हो, मे भी आप नहीं पढ़ते होगे।
मैंने बोला वह अमेरिका जाता है, प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, मुझे नहीं पता भाई वो जाते हैं कि बीच रास्ते से किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, हमें नहीं पता है। हमें जो न्यूज मिलता है वो न्यूज़पेपर से मिलता है या फिर एंकर से मिलता है, हम बिलीव नहीं कर सकते। दूसरे तरीके के जो ग्रामेरियन है वो लोगों ने बोला भाई मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि आप जो बोल रहे हो सही है या नहीं सही है। सूर्य पूरब में उगता है, तो उगता है, उगेगा भी और कल भी उग रहा था। दूसरे लोगों ने क्या बोला, सर क्या आपको पता है वो पूरब है क्या? ये जो आप बताते हो ना जिधर से सूर्य निकला, क्या वही पूरब है? ऐसा श्योर शॉट है क्या? आप हमारे यूपी में चले जाओगे तो ठंडी के महीने में सूरज ना इधर से निकलता है, दक्षिण की तरफ से निकलता है, दक्षिण की तरफ से। तो क्या आप बोलोगे कि ये सूर्य दक्षिण की तरफ से निकल रहा है? आप बोलोगे ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ या फिर गांव के ही किसी बहुत दूर चले जाओ, आपको सूरज ना ये साइड में दिखेगा, दक्षिण मतलब उत्तर की तरफ से उगना चालू हो जाता है। तो क्या हम उत्तर को मान लें कि ये पूरब है? अनिश्चितता बरकरार है माय डियर, पूरी तरह से निश्चितता बरकरार है। और अगर निश्चितता है तो सूरज पूरब से निकलता है, तो ऐसा नहीं कि आज पूरब में निकल गया तो कल पश्चिम में निकलेगा, परसों उत्तर में निकलेगा, फिर दक्षिण। नहीं नहीं भाई, जिधर निकल रहा है उधर ही निकलेगा, आज भी निकल रहा है, कल भी निकल रहा है, आने वाले 1000 वर्षों तक भी उधर निकलेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं माय डियर? दो लॉजिक है। पहला लॉजिक है अगर मुझे नहीं पता है, मैं पढ़ाता हूं, आपको नहीं पता है कि मैं पढ़ाता हूं या फिर मैं नहीं पढ़ाता हूं। दूसरा क्या है, दूसरे लोग बोले भाई आज आप पढ़ाते हो तो कल भी आप पढ़ाओगे, परसों भी आप पढ़ाते थे, तो इसमें भी इंडेफिनिट है। तो दोनों तरीके का मैंने आपको लॉजिक बताने का प्रयास किया है कि इंडेफिनिट को इंडेफिनिट ही क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू मेड यू अंडरस्टूड। मैंने आपके क्या समझाने का प्रयास किया, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं है, वीडियोस अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, वहां पे देख लेना। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होएगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, नो प्रॉब्लम। पूरे लोगों को इंग्लिश सिखाना है, जो भी आएगा अपने कांटेक्ट में सबको इंग्लिश सिखाना है, किसी से किसी को भी छोड़ना नहीं है। मतलब जो आएगा ना पूरे इंग्लिश सिखा देंगे, उसको टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल सा जवाब है सर, यहाँ पे काम का जारी होना पाया जाता है। जैसे वर्क इज ए प्रोग्रेस, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। अरे भाई टाइम पता चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, मतलब वर्क जो है मेरा, वर्क इज इन प्रोसेस, माय वर्क इज नाउ इन प्रोसेस, इट इज गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन, इट इज गोइंग ऑन। He is working in my company, वो मेरे कंपनी में काम कर रहा है अभी, राइट नाउ इज वर्किंग माय कंपनी। ही इज लिविंग विथ मी, वो मेरे साथ रह रहा है, प्रेजेंट टाइम में रह रहा है। She is trying to reach, वो पहुंचने का, पीला पीला तू पीला भैया। गाइस प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जिसको भी बात करना है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए आप लोग गाइस, ठीक है। आई होप कि क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो ये यूट्यूब पे थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। ट्राई करो आप लोग, अगर बात करते हैं तो बेशक आप क्या कर सकते हैं, अनम्यूट कर देना। दैट इज वो है यार, डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन में भी रह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई नो आप लोग डिसिप्लिन हो, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशंस, ओके। शी इज ट्राइंग टू रीच, वो पहुंचने का प्रयास कर रही है, प्रेजेंट में कर रही है सर, बेशक प्रेजेंट में कर रही है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ही क्यों कहते हैं सर? काम का जारी होना पाया जाता है, काम मेरा एक्शन चालू है। परफेक्ट को परफेक्ट ही क्यों कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की बात करते हैं। परफेक्ट मतलब क्या हुआ, पर आप बोलते हैं ना यार ये लड़का बहुत परफेक्ट है ये पोजीशंस के लिए, ठीक है, या फिर ये जॉब मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। बहुत परफेक्ट यार मिल जाती ना तो कसम से बताता हूँ मेरे लाइफ में 4 चांद हो जाता, मतलब ये जॉब और मेरी जो लाइफ है ना एकदम मैच करती है। परफेक्ट मतलब पूरी तरह से परफेक्ट हो गया, मतलब काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने बताया आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, मेरा एक्शन है कंप्लीट हो चुका है, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट नहीं है, हो नहीं रहा है, हो चुका है माय डियर, हो चुका है। क्या हो चुका है? मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने मोबाइल खरीद लिया है, आई हैव परचेज्ड मोबाइल, आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल। मैंने लैपटॉप बेच दिया है, आई हैव सोल्ड माय लैपटॉप, मैंने अपना लैपटॉप ही बेच दिया।
काम कंप्लीट कर दिया हो, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। याद रखना इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, वहां अनिश्चितता बरकरार होती है, टाइम कहीं पे भी हो सकता है। कंटिन्यूअस में काम का जारी होना पाया जाता है, परफेक्ट में काम खत्म हो चुका होता है। एंड लास्ट में आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है सर, एक टाइमिंग दे दिया जाता है, यहाँ पर टाइमिंग की बात आ जाती है। मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 डेज। मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 डेज। 3 दिन का यहाँ पे टाइमिंग मैंने दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया होता है। याद रखना कि ये कंटिन्यूअस जैसा नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं ना कि मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, तो ये टाइमिंग दे दिया जाता है, तो ये परफेक्ट हो गया। when there is a timing given in any of the sentence, that will be considered as a present perfect. ओके, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट। प्रेजेंट रहने दो, वहां पे रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। समय के साथ रहा था रही थी तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। वो आगे हम लोग देखेंगे टेंसेस में। यहाँ पे मैंने दिया है सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। वो 3 दिनों से बीमार, 3 दिन से बुखार से बीमार है, मतलब पीड़ित है। टाइमिंग दे दिया गया है, यहाँ पे टाइमिंग दिया गया फॉर 3 डेज। फॉर 3 डेज क्या दिखाता है कि भाई परफेक्ट है, टाइम आपको परफेक्शन में मिल गया है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस लास्ट मंडे। मैं पिछले मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। कब से सर? पिछले मंडे से। टाइम दिया गया है, तो परफेक्ट को परफेक्ट क्यों बोलते हैं माय डियर ऑल? बिकॉज देयर इज अ टाइम गिवन इन द सेंटेंस। टाइम गिवन इन द सेंटेंस। मैं आपसे फिर भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक नीचे वाला सेंटेंस आप देखने का प्रयास करो। मैं खेलते रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं खेलते रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे आपको टाइम नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी टाइम है। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने का जो जिम्मेदारी लिया है ना, मैं आपको सेंटेंस पहचान करवाऊंगा। आगे जब आप पढ़ना चालू करोगे मेरे साथ, आगे कैसे पढ़े जाते हैं न्यूज़पेपर, तो बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे क्या लगा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ। मैं खेलते रहा हूँ, मैं खेलते रहा हूँ, इसका मतलब याद रखना, मैं खेल रहा हूँ और मैं खेलते रहा हूँ में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे टाइमिंग दिया है। 2 एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। मैं खेल रहा हूँ, अभी खेल रहा हूँ सर, प्रेजेंट में मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग एट प्रेजेंट टाइम। मैं खेलते रहा हूँ मतलब पास्ट से मैं प्रेजेंट में आ रहा हूँ, मैं खेलते रहा हूँ। फिर से देखो, मैं खेलते रहा हूँ मतलब मेरा जो समय है ना वो पास्ट से चालू है और प्रेजेंट में आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिख रहा, जैसे ऊपर वाले में दिखा कि हाँ भाई सोमवार से खेल रहा हूँ, 3 दिनों से बीमार हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, सोमवार मंगलवार सुबह शाम कुछ नहीं दिया है। आपको लगेगा यार यहाँ की हैव बीन क्यों यूज किया गया है। आप हैव बीन दिखाने का, टाइम फ्रेम दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं 3 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं सीखते रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोलते रहा हूं। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी क्यों है? हाउ इज योर इंग्लिश सो गुड? मैं इंग्लिश बोलते रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आज से नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश मतलब आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं नहीं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलते रहा हूं। तो याद रखना माय डियर कि जो परफेक्ट कंटिन्यू होता है वहां पे टाइमिंग दिया होता है। एक स्टैंडर्ड में कभी कभी टाइम नहीं दिया होता है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं पहचानूं। मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं बनाई गई है। हालांकि कहीं कहीं लोग हिंदी के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि ता है, ती है, ते है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी के हिसाब से यू कैन नॉट गो एज पर द इंग्लिश। मतलब इंग्लिश इज नॉट डिजाइंड एज पर द हिंदी। हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो डियर ऑल, मेरे पास 1 ही मिनट बचा हुआ है क्योंकि आपके 40 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो 1 मिनट में जैसे ही मेरा स्लाइड बंद हो जाएगा आप लोग समझ जाइए कि मेरा क्लास ओवर हो गया है। कल सेम टाइमिंग पे आएंगे हम। आगे बोलते हैं। यहाँ पे नोट मैं आपको बता दे रहा हूँ। हियर यू आर अनेबल टू गेट टाइम इन सेंटेंस, बट इफ यू थिंक with the logic you will get to know that there is work of playing happening from past, not in the present. It is completely different from present continuous tense, like मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलते रहा हूँ और मैं खेल रहा हूँ में बड़ा डिफरेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इससे टाइमिंग नहीं पता चल रहा है। मैं खेल रहा हूं मतलब मैं खेल रहा हूं
मैं खेलते रहा हूँ, इससे एक टाइमिंग पता चल रहा है कि भाई पास्ट से मैं खेलते रहा हूँ।